Okay, Imran, when I come to the studio, I'll let you know, okay, about this. In the meantime, let me just have a look at it and get back to you. Hi, Hi. what's the schedule for today? Today we have an interview at Nritya Shakti Studio by Rohit Khilani from Bollywood Hungama. Okay, what time? 12:30. Oh, we should rush. Yes. Chalo. Hello? Yeah, I'm coming to the studio. I have Bollywood Hungama's interview not today. Yeah, I'm on my way. Okay, I'll see you. Let's go. Hello. How are you? Very good. How are you? Good, Rohit. Hi. Thank you Very nice so to much. meet you. Nice to meet you. Thank you for doing this. Thank you for allowing us here. Of course. It's my pleasure. This is your team. Yes, that's Okay. my team. Lovely. And it's so, what a place, yeah. Like, my God, ये तो देख के like this you don't get to see in Bombay. Yeah, I know. That's the reason I got the studio here. Very nice, really. I'm nice. glad you like it. It's beautiful. Like, you know, when you come here, your mood will change. Like, you want to Yeah. dance and all that. It's amazing. True. I'm so happy you are saying the things. Those are the reason why I got this studio. Absolutely, because you know, there we stay in such congested, just seeing buildings like right here and right here. It's so overwhelming to be in the city and to Yeah. be able to create Yeah. something fresh and unique. You need to be Yeah, peace and 100%. quiet. Like this is, I've seen this after I don't know how many years. Like Yeah. open area. Like, I know the Yeah. sky, and Yeah. you see it in the night. See it during the rains, and you'll see the beautiful sunset today. That's what I was seeing. These buildings, they must be seeing a beautiful sunset every day. Yeah. Lucky people. Yeah, yeah. Like we get to dance here and we see the sunset. Wow, yeah. It Nice, looks nice. beautiful. How many years you've been here? 10 years. Oh wow. So you literally got this like way back. Amazing. 2016. Amazing. Before dance happened in your life, what was your life like? स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्रामा हो, डांस हो, स्विमिंग से लेके सब कुछ हम लोग हर चीज में वी यूज्ड टू कम्पीट. Amazing. और हम 1 या 2 महीने के लिए घर आते थे वापस हॉस्टल से. तो वहीं से ही हमारा एक फाउंडेशन सेट हो गया. आपने कितना अचीव कर लिया है जो आपको अचीव करना है? कहाँ पहुंचे हो आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव जस्ट बिगन. आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड. देयर इज सो मच आई वांट टू डू. I want to create a performance space for dancers like an auditorium जहाँ ये बच्चे परफॉर्म करें. और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे क्रिएट करनी है डांसर्स की. लोग अभी भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने बच्चे को ये शो में भेजूं या नहीं भेजूं. आप क्या कहना चाहेंगे? रियलिटी शो क्या प्लेटफॉर्म है? मैंने भी जब डांस इंडिया डांस किया था, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो डिसीजन लेना, बिकॉज आई वॉज सो कंफर्टेबल इन टेरेंस स्कूल. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, एवरीवन लुक्स अप टू यू, आपको थोड़ा सा काम भी मिलने लग गया है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो क्या जरूरी है. आज आपके डैड मॉम आपको क्या बोलते हैं? दे फील वेरी प्राउड, दे फील वेरी हैप्पी कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो पूरे टाइम. मेरे बच्चे लगे रहते हैं, मम्मी तो बहुत. अभी भी एक परसेप्शन है कि ये बॉलीवुड अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे मुंबई जाके पता नहीं क्या होगा. अगर आपको कोई कुछ कह रहा है कि ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है. यू कैन सक्सीड बाय बीइंग योरसेल्फ, बाय बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट. अगर आप अच्छे हो ना, एवरीबॉडी विल चेज फॉर वर्क. बाकी ये सब करने से भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कुछ मिल जाता है. नमस्ते, मैं हूँ शक्ति मोहन और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव अ लॉट ऑफ लव. शक्ति, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस इंटरव्यू. मैं आपको कई साल से देखता आ रहा हूँ. आपका काम जो भी आप करते हैं, हमको ऐसे लगता है, दैट्स व्हाई व्हेन वी सिट हियर, ऐसे लगता है आई ऑलरेडी नो यू.
So sweet. Thank you so much for coming to the studio and spending this beautiful day with me. Thank you. राइट पहले आप बताइए ये स्टूडियो के बारे में, आपने यहाँ पे क्या डिसीजन था, आप यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टूडियो लिया, ये बहुत ही आई डोंट थिंक पीपल कैन सी इट बट ये बहुत ही सुंदर जगह है और ये स्टूडियो की बहुत ही अच्छी वाइब है. टेल मी द स्टोरी ऑफ द स्टूडियो. So I was shooting. जी. ऐसे इससे ऑपोजिट एक फ्लोर है. Okay. यहीं पर ही. वहाँ पर मेरा फोटो शूट चल रहा था. Okay. And this was 10 years back. Okay. और मैं ना ऐसे बालकनी में खड़ी थी and as you saw the view outside, Yeah. I'm like, this doesn't feel like it's Bombay. It's Yeah. so beautiful. I can Yeah. see the sky, clouds, birds. Like, I'm like, I wish I have a studio someday over here. ऐसे ही बोल के. तो then the person that who was shooting, उनका स्टूडियो था. उन्होंने बोला कि this floor is empty. सामने वाला पूरा खाली है. So then I remember standing outside in the balcony and then I'm peeping inside like this. अंदर क्या है? And this was just a shell. उस time पे. Empty. Okay. So then I just I finished the shoot. I went home and I told my parents कि मैंने एक ऐसी बहुत सुंदर जगह देखी है. And honestly, I don't come from a very wealthy background. तो मैंने ऐसी हवा में ही पापा को बोला कि ऐसा है. He's like, okay, let's go see it. And then I'm like, okay, let's go see it. I have no idea Right. कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And we came, we saw it. Papa is like, नहीं ले लेते हैं. Wow. ले लेते हैं, रेंट पे ले लेंगे. I'm like, okay, I don't even know if I have the money. And it was not like my dad didn't have a job for many years. तो मुझे लगा कि करेंगे कैसे, पापा ने बोल दिया. तो बस थोड़े टाइम के बाद बोला कि ओके ये लीज पे ले लेते हैं, देखते हैं कैसा चलता है. And then I ran it for a year and then I decided that okay, I love this place, I love the vibe. Okay. And उस वक्त पे जैसे आपने बोला ना आपको आते ही पॉजिटिव लग रहा है. Yeah. उस टाइम पे मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सारे डांस के जो मेरे फ्रेंड्स हैं सब इस इंडस्ट्री के, और बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को भी इनवाइट किया. सबने आके फर्स्ट थिंग यही बोला कि बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो बस फिर ऐसा समझ में आ गया कि नहीं ये तो लेना ही है, करना ही है. Okay. So that's how it all began. Wow. So I'm gonna now take you back because आपने कई इंटरव्यूज में अपनी स्टोरी बताई होगी, but every interview reaches really a new audience. So before dance happened in your life, what was your life like? क्या करते थे आप? I used to be a very studious person. मैं बहुत जल्दी ही मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था. एक्चुअली मैं गई थी क्योंकि पहले नीति दीदी को भेज दिया पापा ने. एंड उस टाइम पे जिस हम नेबरहुड में रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ थोड़ा सा अनसेफ लग रहा था पापा को. 4 बेटियां, हम स्कूल भी जाते थे तो बहुत ऐसा था कि मैंने खुद से देखा है कि दीदी को छेड़ रहे हैं, एंड शी वाज आई थिंक एट दैट टाइम 13-14. तो पापा को लगा कि दिस इज नॉट सेफ एंड दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देमसेल्व्स एंड ग्रोइंग. तो फिर उन्होंने हमें बिरला का एक गर्ल्स स्कूल है राजस्थान में, वहाँ पे डाल दिया. और दीदी को देखते देखते मैंने भी बोला कि मुझे भी ज्वाइन करना है, प्लीज मुझे भी डाल दो. आई वाज जस्ट 7 years old. दे वर लाइक कि कैसे रहेगी खुद से, मतलब मुझे जाना था. हाँ, आई वाज एक्साइटेड क्योंकि दीदी कर रही है, मुझे भी करना है. बट व्हेन आई रीच्ड देयर ऑफ कोर्स आई रियलाइज्ड आई वाज क्राइंग लेटर. पर आई थिंक वहाँ से जो लाइफ स्टार्ट हुई ना बोर्डिंग स्कूल से, एंड आई हाईली रिकमेंडेड टू एवरीबॉडी कि अगर आपको अपने आप पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स में, डांस, आर्ट्स, म्यूजिक, सब चीज पे, यू नीड टू बी अवे इन योर ओन वर्ल्ड. मुझे तो बहुत मजा आया. ऑफ कोर्स 1-2 साल में बहुत रोई, मम्मी की याद आ रही है, नींद नहीं आ रही है रात को. बट आई लुक बैक एंड आई थिंक दैट रियली मेड अस वेरी इंडिपेंडेंट. वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. एंड मतलब पूरे दिन भर आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ हो, मस्ती भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो बहुत ज्यादा. और मुझे लगता है कि जब आप अपने फैमिली में रहते हो ना, बहुत रिश्तेदार आते हैं, त्योहार होते हैं, शादियां होती हैं, तो उसके चक्कर में ना आप अपने पे फोकस नहीं कर पाते. दिस इज व्हाट I truly believe. And तो वहाँ हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ हर साल हम लोग स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्रामा हो, डांस हो, स्विमिंग से लेके सब कुछ, हम लोग हर चीज में वी यूज्ड टू कम्पीट. और हम 1 या 2 महीने के लिए घर आते थे वापस हॉस्टल से. तो वहीं से ही हमारा एक फाउंडेशन सेट हो गया, where we started enjoying competing and performing constantly. फिर बाद में दीदी ने भी दीदी बड़ी है मुझसे, तो दीदी ने बहुत प्रेशर डाला कि तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, एक्टिविटीज भी करनी है, पढ़ाई भी बहुत करनी है. ये कहाँ से है? हाँ, तो ठीक, तो मजे तो कर रहे हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे याद है एक बार मेरे ऐसे हम लोग के एग्जाम्स होते थे कभी कभी, पीरियोडिकल्स, उसमें मेरे 20 में से 13 नंबर आए थे. तो आई वाज तो जस्ट चिलिंग, घूम रही हूँ मैं, ऐसे 4th स्टैंडर्ड में थी. तो दीदी आई और मुझे डांटने लग गई. दीदी कह रही है कि 20 क्यों नहीं आए.
तो मुझे समझ ही नहीं आया ये कॉन्सेप्ट क्या है कि फुल क्यों लाना है, मतलब इतना मेरे को उस टाइम समझ ही नहीं थी। तब मुझे लगा कि नहीं अब मतलब फुल लाने, दीदी ने बोला। तब से देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। ऐसा होता था कि हॉस्टल में आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू वेक अप। सबको पता था कि अगर एक लड़की ग्राउंड में घूम रही है, बुक लेके अपना रट्टा मार रही है, तो वो मैं हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स रिवीजन मोहन भी बोलते थे कि बार बार रिवाइज करती रहती है, फर्स्ट आना है इसको हमेशा। तो दैट वाज माय upbringing, I think was primarily my boarding school, and I'm so grateful to my parents कि उन्होंने हमें ऐसे एक एटमॉस्फेयर में भेज दिया जहाँ पे हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। True, आप बहनों ने बहुत मेहनत की है, and there's that credit to obviously goes to you all, but your parents have played such a big role to let you all do this. Mostly India में ये होगा कि नहीं पहले पढ़ो, बाद में जाके ये सब करना, but ये बाद में कभी आएगा नहीं क्योंकि आपकी एज निकली जा रही है। How important it is, do you think that parents should listen that these are great art forms? आज आपके साथ nothing speaks like success, आपके साथ लोग सेल्फी लेने आते हैं, बट ये होगा तब ही जब लोग करने देंगे। करेक्ट। इनफैक्ट पापा तो जब भी हमें मिलने आते थे बोर्डिंग स्कूल में, हमें सबसे पहले बोलते थे कि पढ़ाई के अलावा क्या किया। एंड हम लोग सिर्फ यही सुनते थे टीचर्स से, स्टूडेंट से, सबसे मार्क्स। बाकी सब चीजें आर लाइक ऐसा साइड में, पर पापा के बोलते थे और क्या किया, मार्चिंग बैंड में पार्टिसिपेट करो, जितनी एक्टिविटीज हैं, जो कॉम्पिटिशन आते सब में जाओ। तो आई थिंक his way of looking at life is very different. वो आज भी मुझे ऐसा विजन देते हैं which I am like what is he talking about, ये कुछ मतलब, and then I see it happening couple of years later. So he is definitely a visionary. And the way my mother has supported all of us through this, and from starting with कि 4 बेटियां हो गई, लाइबिलिटी है, से लेके मेकिंग अस ऑल फ्लाई एंड नॉट स्टॉपिंग अस कि नहीं जल्दी जल्दी शादी करो और अपने अपने घर जाओ, ऐसा कभी भी नहीं किया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने हमेशा हमें इतना सपोर्ट किया। Wow, no, they are absolutely lucky to have 4 daughters. My God, it is the best thing in the world, I feel. Tell me, dance mainstream करना है आपको, ये कब डिसीजन हुआ कि मुझे आता है ये आर्ट, मैं अच्छी भी हूँ, इंटरेस्ट भी है, बट चलो now I'll do just this? एक्चुअली बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे यही करना है। पर मुझे डर था ये बोलने में सबको। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने सोचा कि आई विश आई वाज इन अ डांस स्कूल। मैं ये सब पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, आई डोंट लाइक ये मेरा इंटरेस्ट का ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मुझे किसी स्कूल में डाल दें जहाँ दिन भर सिर्फ डांस होता है, लाइक दैट विल बी समथिंग दैट। एट व्हाट एज डिड यू थिंक ऑफ दिस? आई वाज 8 years old. 8 years. And I remember it very clearly कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सिर्फ डांस करना है। And then I could not say it out loud till I was 21. Because I was afraid that nobody will understand this and people will laugh and say कि डांस क्या होता है, लाइक डांस क्यों करना है, डांसर का जॉब क्या होता है, लाइक पीछे आप डांस करोगे, बैकग्राउंड डांसर, और क्या है इसके आगे। एंड प्लस वी आर इन दिल्ली, वी डोंट इवन हैव द एक्सपोजर ऑफ बॉम्बे, वी डोंट हैव एनीबॉडी इन द फैमिली दूर दूर तक जो इस फील्ड में कहीं पे गए हो। तो बोलने में ही बहुत डर लग रहा था। पर जैसे हमारी फैमिली एक टाइम पे बॉम्बे शिफ्ट हुई, माय पापा गॉट अ जॉब, दीदी ऑल्सो उस टाइम पे एक आसमा बैंड आया था, चैनल वी पॉप स्टार्स, वहाँ सेलेक्ट हो गई, तो हम लोग सब यहाँ मूव हुए। ये कौन से साल में था? 2003। वाओ, ओके। उस टाइम पे जब दीदी और सब शिफ्ट हो गए तो उन्होंने बोला तुम लोग भी इधर ही आ जाओ, दिल्ली छोड़ के। तब हम लोग इधर आए 2006 में, मैं, मुक्ति और सब। एंड तब हमने टेरेंस सर का एक डांस का परफॉर्मेंस देखा, और वो परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने सोचा कि ये जो भी है मुझे ये करना है। आई डोंट नो व्हाट डांस फॉर्म, व्हाट कुछ भी नहीं, हम लोग तो बॉलीवुड ही करते थे टीवी से देख देख के, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। पर वहां पे सोचा कि ये करना है मुझे। तब फिर दीदी ने बोला नो गो जॉइन, आस्क हिम कि कैसे करते हैं। तो पर मुझे तो IAS बनना है, मतलब मैं दिल्ली से आई हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ और मैं टॉपर हूँ, तो मुझे तो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग था कि ये करूँ कि ये करूँ। तो एट दैट टाइम the strongest pillars were my sister. Right. She told me that okay, go for it. अगर कुछ नहीं होगा तो you go back. You go back to IAS. But definitely do it. You're very good at this. तो मुझे लगा okay, दीदी को इतना विश्वास है तो I must do it. वाह। तो टेरेंस के साथ जब ये पहली मीटिंग है, आपको याद है क्या बोला आपने, क्या कैसे अप्रोच किया? मुझे याद है उनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो वो हमें पता चला था। एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन, और मैंने दिल से उस पे अपना ऑडिशन प्रिपेयर किया था। एंड वो ऑडिशन के टाइम पे मैंने देखा था कि वो ग्लास डोर था और सर बाहर से देख रहे थे
कि स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है, एंड आई वाज गिविंग द ऑडिशन। ओके। तो सर ने पूरा ऑडिशन देखा, एंड देन मेरे लिए ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने पूरा दिमाग अपना बना रखा था कि मुझे आईएएस ही करना है, और मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो आफ्टर आई फिनिश द ऑडिशन, सर आए अंदर स्टूडियो में, मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने कहा सर मैं तो पढ़ाई करके मतलब कुछ करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सर्विसेज और ये सब। तो सर ने बोला कि फॉलो योर हार्ट, डू व्हाट यू लव, बिकॉज यू सीम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप जो भी करोगे आप उसमें सक्सीड करोगे, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग। तब मेरे को ऐसा लगा कि सर को मेरे पे कैसे विश्वास है, ही जस्ट सीन मी। तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी। इनफैक्ट ही गेव एन एग्जांपल कि इवन इफ यू चूज पॉटरी, तब उसमें भी आप, तो मुझे लगा कि ओके, दैट्स सो गुड टू हियर ना, yeah, दैट्स ग्रेट। I had no clue what I was getting into, but I think the way he spoke to me, it really gave me the courage, okay, let me give it a shot. And it was a 3 years program to, you know, give your life to something and not be able to look back. So I had no clue what I'm stepping into. But I was like, I love this so much. If he's saying this, my sister supporting me, let me try and let me do it. Right. तो आपने IAS नहीं किया, you know, गवर्नमेंट जॉब्स का लॉस इज डांस एंड कोरियोग्राफी का गेन। जो टेरेंस ने आपके लाइफ में किया, you know, that do you believe do you pass it on? Because आज आप वही है यंग डांसर्स के लिए, जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, जो आपको देखते हैं, what role do you want to play in their life? मतलब जो टेरेंस सर ने मेरे लिए किया, आई डोंट थिंक मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से जितना भी कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग देम अ स्पेस एंड अ प्रोग्राम, जो चीज़ें मुझे लगी कि मैं कैसे, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उससे सीख के और बेटर कैसे करूँ स्टूडेंट्स के लिए आज की दुनिया में। क्योंकि उस वक्त पे भी हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, मतलब फॉर अ डांसर टू सर्वाइव इज नॉट इजी, यू हैव टू डू मल्टीपल जॉब्स। आप डांसिंग भी करते हो, आप कोरियोग्राफी भी करते हो, आप टीचिंग भी करते हो, प्लस सम पीपल डू other jobs also, like office में भी jobs करते हैं। So we have to hustle a lot in a city like Bombay, it's not easy। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा space मैं create करूं जहां पर एक ही जगह पे डांसर्स आके ना सारे तरह के डांस फॉर्म सीख लें, दे बिकम वर्सेटाइल। कि कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ हिप हॉप ही सिखाया जाता है, कहीं पे सिर्फ कंटेम्प्रेरी। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे डांस फॉर्म सीखने का मौका मिलता है अंडर वन रूफ। एंड प्लस आई पर्सनली मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू कोरियोग्राफ ऑल्सो, कि उनको आगे का एक्सपीरियंस हो, आगे ऑडिशन देने की भी उनकी तैयारी कराते हैं हम, कि अगर आप बाहर रियलिटी शोज में भी जाओगे तो ऑडिशन कैसे देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर ऑफर करते हैं। एक प्रोग्राम है, इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। So I wanted to design a course in such a way that एक बार आपने वो कोर्स कर लिया ना, you are ready to face the world. It's not just आपने few classes करी and you are out there. So that was the idea. Nice. आपने कितना अचीव कर लिया है, जो आपको अचीव करना है? कहाँ पहुँचे हो आप? सब अचीव कर लिया कि और क्या क्या बाकी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि I've just begun. I've not even started. There is so much I want to do. I want to create a performance space for dancers, like an auditorium जहाँ ये बच्चे परफॉर्म करें। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे क्रिएट करनी है डांसर्स के लिए। डांस रियलिटी शो क्रिएट करना है, डांस के बहुत सारी मूवीज शोज ऐसा क्रिएट करें कि डांसर्स का जो ये प्रोफेशन है, जो मुझे डाउट था ना कि मुझे डांस करने में मतलब डर लग रहा है, बोलने में भी डर लग रहा है, जो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यू नो इट्स नॉट स्टेबल या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि बदल जाए। राइट। यू नो, जो बच्चे और पेरेंट्स अभी भी दूसरे शहरों में हैं, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई आके आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, कैसे सिटी ने कंट्रीब्यूट किया, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो मुझे याद है जब हम लोग बॉम्बे पहुंचे थे, हम लोग ट्रेन से आए थे, पूरा दिल्ली का सारा सामान रैप अप करके। Oh my God, हाँ, तो बहुत ही फिल्मी सा था कि पूरी ट्रेन पहुंची है, आई थिंक दादर या टाउन में कहीं पे हम लोग महालक्ष्मी, हाँ वहाँ पे उतरे, और मैं विंडो के बाहर देख रही हूँ और मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि बहुत ऐसा लिबर्टी फील हुई। एंड आई कुड नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस कि आई एम फीलिंग फ्री ओवर हियर समहाउ। तो यहाँ पहुँचे एंड आई थिंक यहाँ का जो मतलब रहने का तरीका जो है लोगों का, और जिस तरीके से लोग ना अपने काम में बहुत है, जैसे अगर मेरा दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है कि एवरीबडी नोज अबाउट एवरीबडीज लाइफ, यहाँ पे क्या है सबको अपनी लाइफ में ही बहुत फोकस है, किसी को नहीं है। तो बहुत चेंज मुझे लगा यहाँ पे कि लोग ना अपने में ही देख रहे हैं, कोई घूर नहीं रहा, कोई ऐसे नहीं कर रहा, तो मुझे लगा वाह बहुत अच्छा लग रहा है। Especially for a girl, it's so liberating. तो आई फेल्ट very free and nice, and
जब मैंने लोगों को बोला भी ना यहाँ पर बॉम्बे में मेरा लास्ट ईयर कॉलेज का बचा था, 2 साल मैंने दिल्ली में कर लिए थे मिरांडा हाउस में, और जब मैं जेवियर्स गई तो मैंने जहाँ वहाँ पे लोगों को बताया ना कि आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, दे लाइक दिस इज सो दिल्ली, ये बहुत दिल्ली वाले लोगों को सिविल सर्विसेज करना होता है। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है, पर मैंने एक्चुअली पता किया कि पूरे शहर में लिटरली ऑन फुट मैं दादर और ऐसे टाउन में घूम घूम के ना, जैसे बहुत सारे स्कूल्स नहीं होते हु प्रिपेयर यू फॉर IAS, दिल्ली में हर जगह पे है। ओके, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं मुझे, किसको पता भी नहीं होगा। तो आई वाज ब्रॉट इन टू द सिटी टू चेंज एवरीथिंग। तो यहीं पे मुझे लगा ओके यहाँ पे तो डांस सामने आ रहा है मेरे बार बार, तो लेट्स डू दिस। वाओ, यू नो, एंड जब डिसाइड हो गया कि IAS नहीं कर रहे हैं, किसी का भी पेरेंट्स का वो था कि यार सोच ले हो क्या कर रहे हो, यू नो वो अलग लाइफ होगी, किसी ने कोशिश की आपको दूसरी तरफ ले जाने की? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो पापा ने सामने से बोला जो करना है करो। Amazing. Yeah, he's like it has to be your decision. I can't tell you because I was so confused. Genuinely, I'm like I can go in either direction, and I know I'll give my best. पर उन्होंने बोला this is your life. I don't want you to look back and say, Papa, because you told me, you know, I'm here and I'm suffering or whatever. He's like, you make your choice. Wow. And he would sit down with me एक पेपर पे लिखते थे, लिखो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, मनी सेटिस्फैक्शन, लॉन्जेविटी, व्हाटएवर, ऐसे करके पूरा वो चार्ट बनवाते थे। फिर सब में मार्क्स लिखो, तुम्हें कितनी चीज इसमें इंपॉर्टेंट लगती है। तो हर चीज में डांस वाज विनिंग बिकॉज माय हार्ट वाज देयर, बट आई हैड नो क्लू अबाउट कि हाउ आई विल बी एबल टू सर्वाइव फाइनेंशियली इन दिस। उसका कुछ जवाब नहीं था मेरे पास। मुझे पता था कि ओके आई विल बी एबल टू मैक्स टू मैक्स बिकम अ बैकग्राउंड डांसर और असिस्ट कोरियोग्राफर, या घर घर जाके डांस सिखाना होगा। पर उस चीज से भी मुझे इतनी खुशी थी कि अगर मुझे डांस करने को मिल रहा है और सामने से बहुत बड़ी जॉब मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो मैं आई एम नॉट चूजिंग द मनी। मेरे लिए पता नहीं बहुत क्लियर था ये शुरू से कि मुझे यही करना है बस। this is the biggest luxury for me. Amazing. You know, you are a hero for many of us, but your dad now here is the bigger hero. I think I should meet your father. You know, आप लोग को घर में कब रियलाइज हुआ कि ये सभी एक क्रिएटिव और एक टैलेंटेड है अलग अलग चीज़ों में, और सभी यू नो उभर के आ रहे हैं, यू नो सोसाइटी में फेमस हो रहे हैं, ये कब आप लोगों को रियलाइज हुआ? एक्चुअली हम तो बचपन से ही वी यूज टू डांस। हर फंक्शन में, घर के फैमिली फंक्शंस में हम लोग जहाँ मौका मिलता था डांस करने लग जाते थे। मैं और मुक्ति पूरा घाघरा वगैरह पहन के, लंबे लंबे बाल तो थे नहीं हमारे, छोटे छोटे बाल थे आपके जैसे थे, तो हम लोग स्कर्ट लगा के लंबे बाल करके पूरा शो करते थे पूरी फैमिली के लिए। तो बचपन से दिस वाज वेरी नॉर्मल फॉर अस, इवन फॉर आवर कजिन्स हु आर नाउ इन बैंकिंग एंड एवरीथिंग, बट फॉर अस दिस वाज लाइक दिस इज आवर चाइल्डहुड। एंड देन आई थिंक जब दीदी ने अपना डिसीजन लिया ना टू जॉइन दैट पॉप स्टार्स वाला, वहां से आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शी हैज लेड द वे फॉर अस टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। क्योंकि पहले हमारे लिए था कि ओके देयर इज नो वे, लाइक वी हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस। एंड वहाँ उस टाइम पे कोई ऐसे डांस के रियलिटी शोज भी नहीं थे कि ओके देयर इज अ वे। तो हमारे लिए यही था कि ओके दीदी हैज गॉन टू बॉम्बे, एंड नाउ व्हेन आई गॉट इनटू टेरेंस हर स्कूल, तब ऐसा था कि ओके वी डिडंट डिसाइड कि ओके नाउ यू चूज एक्टिंग, यू चूज सिंगिंग। ऐसे करके सबका अपने अपना इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि मुक्ति ने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, शी जॉइन्ड द स्कूल, मैंने ज्वाइन कर लिया, और दीदी अपना सिंगिंग कर ही रही थी। सो इट जस्ट काइंड ऑफ हैपेंड, लाइक नोबडी सैट डाउन एंड डिसाइडेड कि हम इस चीज में घुस रहे हैं, एंड it just happened. And nobody knows how far or where it's going to go. We were all just there कि okay हम कुछ कर रहे हैं, and we are very happy doing what we are doing. Wow, you know, reality shows have played such a big role in your lives. अभी भी अगर लोग जो रियलिटी शो में you know क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म पे हम एक ही वो क्लिप देखेंगे जहाँ किसी की बेइज्जती हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ जज ने बोल दिया, कोई यू नो ये सब वायरल जाता है। तो लोग अभी भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने बच्चे को ये शो में भेजूँ या नहीं भेजूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, रियलिटी शो क्या प्लेटफॉर्म है? समवन लाइक यू हु हैज बीन देयर डन दैट। आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू बी सीन. It's the best way to be seen, yeah. Definitely, and to challenge yourself. You need to be out of your comfort zone. Because मैंने भी जब डांस इंडिया डांस किया था, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो डिसीजन लेना, बिकॉज I was so comfortable in Terence Her School. You know, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, everyone looks up to you.
आपको थोड़ा सा काम भी मिलने लग गया है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो क्या जरूरी है किसी में जाने के लिए ना. तो दैट डिसीजन आई थिंक रियली चेंज माई लाइफ बिकॉज आई पुश्ड माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. एंड माई आइडिया टू ज्वाइन द शो वॉज कि आई विल लर्न समथिंग न्यू. तो मैं उसी थॉट से गई थी शो करने के लिए. एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर इट गेव, द काइंड ऑफ लर्निंग दैट आई हैव हैड थ्रू दैट शो एंड व्हाट माय बॉडी फिजिकली मेंटली कैन टेक, जो आपको नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आप अपने आपको पुश ही नहीं करोगे. लाइक नाउ आई विल नॉट स्पेंड 18 आवर्स इन द स्टूडियो. आई विल लाइक थोड़ा करा और चले गए. There you have to each and every day you have to survive. And dancing and physically like exhausting. तो वो करने के बाद मुझे लगता है कि okay, there's a sense of achievement that to be able to do that and to win the show, that was a bonus. तो for anybody who's starting out and they feel like they need a platform to be seen, it's आज के जमाने में तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. उस वक्त पे नहीं था. तो वो भी बहुत अच्छा है कि अगर किसी को नहीं जाना है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल बीइंग ऑन स्टेज, तो दैट इज आल्सो एन एवेन्यू अवेलेबल कि आप सोशल मीडिया पे भी स्टार बन सकते हैं. राइट. सोशल मीडिया पे कैसे स्टार बन सकते हैं? आई मीन सपोज किसी के पास टैलेंट है, फोन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? I mean, just showcase yourself constantly, like create videos, dance, and world needs to see you. And if you're good, you know, we all share videos that we like. तो वो हम लोग जितने टेलीविजन शोज नहीं देख रहे उतना तो हम लोग अपना फोन देख रहे हैं आज. तो कोई भी कहीं किसी कॉर्नर से भी फेमस हो सकता है आज. तो ये एक बहुत बड़ा बोन है इंटरनेट का कि you can be global in like just a matter of seconds. Right. You know, you have also, since you have started, what all changes have you seen in your industry? पहले तो इंटरनेट ही नहीं था इतना. जब मुझे याद है जब DID के टाइम पे फेसबुक हुआ करता था तो हम लोग तो मतलब उसी में इतने एक्साइटेड होते थे. अभी तो एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल. अभी कोई बोलता है ना कि ओके आई डोंट नो दिस, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन, मैं एकदम टीचर टाइप हूँ ना, तो पूछते व्हाट डज दिस मीन, कोई भी टर्मिनोलॉजी आई डोंट नो. मैंने कहा ये तुम्हारे जमाने में तो चैट GPT है, तुम्हें तो कोई बुक भी नहीं ढूंढनी, तुम्हें तो किसी टीचर से भी नहीं पूछना. तो दैट अवेयरनेस और जो भूख है ना नॉलेज की, वो चीज मुझे लगता है अगर आज लोग अगर नहीं सीख कर रहे हैं तो फिर देयर इज नो पॉइंट. मुझे लगता है कि वो हंगर फॉर लर्निंग मोर शुड डेफिनेटली बी देयर. वाओ. यू नो, is there a big advantage of having Instagram or is it also a very big distraction at the end of the day? अगर हम देखे जा रहे हैं और you know there are a lot of non-serious dancers also. It's taken over Instagram. You know, लोग मजाक बना देते हैं. ये एक disadvantage है, flip side है Instagram. See, it's totally up to you. How you use आपका mindset कैसा है? अगर आप इसको अपने लिए यूज करते हो to market yourself or to entertain yourself, वो आपका है. अगर आप उससे कंज्यूम हो रहे हो एंड द इंटरनेट इज लाइक द इंस्टाग्राम्स टेकन ओवर यू, कि आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो काम, तो देन इट्स नॉट बेनिफिटिंग यू. पर आप इंस्टाग्राम को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बैड. नो, नॉट एट ऑल. इन फैक्ट इट इज अ बून. इतने लोगों की मतलब आफ्टर कोविड, मतलब एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही काम कर पा रहे थे. वी कुड सर्वाइव बिकॉज ऑफ दैट. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सच प्लेटफॉर्म्स कि उनकी वजह से हमें काम मिलता है. तो उसको हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते. राइट. यू नो, अगर कोई यंग लड़की ये इंटरव्यू देख रही है या उनके पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं कोई भी शहर में, अभी भी एक परसेप्शन है कि यू नो ये बॉलीवुड अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे मुंबई जाके पता नहीं क्या होगा. what all would you like to tell them कि यहाँ आना सेफ है नहीं है, आए तो क्या करें? See, वर्ल्ड तो कहीं पे भी कुछ सेफ नहीं है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री की बात करो. न्यूज हम हर तरह की देखते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ये होता है, होता हर जगह है. बस बॉलीवुड की न्यूज ज्यादा निकल के आती है क्योंकि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं लोग. तो मैं अपनी सिर्फ बहनों की बात कर सकती हूँ कि सारी बहनें अलग अलग फील्ड में हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पे फोर्स किया जाता है. लोग हर तरह की लाइफ जी रहे हैं हर इंडस्ट्री में, चाहे वो पॉलिटिशियंस भी हो, कॉर्पोरेट्स वाले भी हो, जो भी हो. बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्टी करना पसंद है, रात रात को दारू पीना पसंद है, जो भी है. हम लोग ऐसे कभी थे ही नहीं. एंड व्हेन वी गॉट इन द इंडस्ट्री आल्सो बहुत सारे लोगों ने बोला नो, यू हैव टू गो नेटवर्क एंड मीट पीपल. पर मुझे वो कभी भी नहीं समझ में आया. मतलब आई कुड नेवर गो एंड मीट पीपल जस्ट टू गेट वर्क, कि जाके उनके साथ मैं दारू पीऊं, चिल करूं, मैं फ्रेंडशिप करता. मुझे बहुत फेक लगा वो. तो मैंने कभी किया ही नहीं, ना मेरी बहनों ने किया. और आपको जरूरी भी नहीं लगा?
मतलब जरूरी तो क्या, ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत काम मिल रहा है या कुछ हम कर रहे हैं, लाइक व्हेन वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, और सबने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, व्हेन यू गो आउट एंड मीट पीपल, ड्रिंक, एंड तभी आपका आगे कुछ करियर होगा. आई डोंट वांट माय करियर टू बी एनीवेयर वेयर आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. लाइक आई कांट कॉम्प्रोमाइज. मतलब दिस इज, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, पर आई फेल्ट आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स. तो उस चक्कर में हम लोगों ने, बहनों ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया. एंड मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि nobody will force anything on you. जी. अगर आपको कोई कुछ कह रहा है कि ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है. You can succeed by being yourself, by being true, honest. अगर आप अच्छे हो ना, everybody will chase you for work. बाकी ये सब करने से भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कुछ मिल जाता है. Right. You know, how do you, now that you have a studio, you've achieved so much in life, personally, for your personal creative satisfaction, what all do you do? What do you like to do? How to raise the bar also? I don't know what I do, but I'm constantly working. Yeah. मुझे बहुत मजा आता है कि कुछ ना कुछ नई नई चीजें मैं क्रिएट करती रहूं स्टूडियो में, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ क्या इंट्रोड्यूस करें जो एक्साइटिंग हो. तो दिस आइडिएशन एंड स्ट्रेटजी ना, मुझे बहुत मजा आता है वो करने में, कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए. मुझे बहुत एक्साइटिंग लगने लग गई ये सब सारी चीजें, जो पहले से भी लगती थी. आई थिंक वो डांस के साथ साथ ना मेरा लव फॉर ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट. तो मैं ये करती हूँ. बाकी टू कीप माई क्रिएटिव एनर्जी, आई लव टू ट्रैवल. इसीलिए हमने अपना एक डांस का शो भी बनाया, डांस अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. हमने कहा इसको मिक्स करके ना हम एक डांस का, फोक डांस का शो बनाते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर मेनी मेनी इयर्स, कि दूसरे देशों में जाके ना उनके फोक डांसेस सीखो और उनके साथ परफॉर्म करो. तो हमने एक ऐसा शो भी रिलीज किया. वी आर ऑन इट्स सेकंड सीजन कॉल्ड डांस अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड so I think travel really resets me. When I go to another country and I meet new people, have new food, language, सब कुछ, तो मैं एकदम fresh हो जाती हूँ. Like I'm really missing this right now because of the war. We are not able to travel. Yeah. What kind of a traveler are you? Where would you like to go? And once you go to the country, what is your day like? एक्चुअली हम लोग अभी तक 10 कंट्रीज कर चुके हैं. जहाँ हमने स्टार्ट किया था श्रीलंका से. श्रीलंका, काजाकिस्तान, मॉरिशस, यूएस, यूएई, टांजानिया, जॉर्जिया, रशिया, भूटान, ऑस्ट्रेलिया. तो सारे देशों में मतलब उतनी ही एक्साइटमेंट, क्योंकि द फर्स्ट थिंग ना, व्हेन यू लैंड, यू आर जस्ट लाइक आई कांट बिलीव आई एम हियर, आई कांट बिलीव आई एम हियर, लाइक अ चाइल्ड. तो मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो जाती हूँ. फिर नेक्स्ट डे ना हम लोग बैठ के पूरी मीटिंग करते हैं कि कैसे कैसे शूट करना है पूरे एपिसोड के बारे में. वो करते हैं. फिर फर्स्ट डे हम यूजुअली थोड़ा चिल करते हैं कि चलो थोड़ा स्ट्रीट्स पे घूमेंगे, थोड़ा वाइब लेते हैं इस जगह. करेक्ट, या वी डू दैट. एंड I take moments where I'm alone. I really love just walking on the streets alone, and this is what I miss in India. Yeah, there you can't. एक खाली patch of land, not because there are lots of people. It's just a खाली patch of road which is clean, and where you can walk without any gadda, and you know, without dying, I can take 2-3 steps. मुझे वो इतना बड़ा luxury लगता है when I go to other countries, and I can just take a walk on the road, and I can't believe being such a beautiful country, हम ये manage नहीं कर पा रहे. मुंबई में तो बिल्कुल possible नहीं. And मुझे genuinely लगता है कि our country is beautiful. We have beaches, mountains, rivers. मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे देश में नहीं है. It's just we are keeping ourselves like this. I don't know why. Yeah, that's true. We all are depending on travel to do these basic things, right? You know, अब जो generation सीखने आ रहा है, are they any different? मुझे लगता है कि मतलब लव फॉर डांस इज डेफिनेटली देयर. दैट्स व्हाई दे आर परस्यूइंग दिस. क्योंकि ये जो कोर्स जो मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट इजी. दिस इज फिजिकली वेरी टैक्सिंग ऑन योर बॉडी, मेंटली ऑल्सो. यू वॉक इन टू अ स्टूडियो एंड एवरी क्लास इज डिफरेंट. आप एक क्लास में हिप हॉप कर रहे हो, एक क्लास में कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, एंड यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ. एंड प्लस आप शहर में बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आते हैं, तो वो यहाँ पीजी होके मतलब यहाँ आसपास रहते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर एवरीबडी. तो मुझे लगता है दैट पैशन इज डेफिनेटली देयर. पर मुझे लगता है कि जो भूख व्हेन वी वर स्टार्टिंग ऑफ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू करेक्टली पुट इट, कि आप जितने गरीब होते हो ना, उतनी आप में भूख होती है. जितनी आप में प्रिविलेज होती है, आप उतना ढीले हो जाते हो. Fire is missing. Fire is missing. जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, then you give it your all. आप मरने के लिए तैयार होते हो. तो मैंने ऐसे लोगों के साथ I have, you know, conditioned and trained कि मतलब जान दे देंगे वाला सीन. तो वो
मुझे आज थोड़ा मिसिंग लगता है, सब Right. बच्चों में नहीं लगता वो. True, and what you're saying is damn important because I also am surrounded by a lot of college students who have studied in very good colleges here. All their parents have given them literally everything. हमारे लिए एक फ़ोन खरीदना बहुत बड़ी बात थी पहले. आज सबके पास, सब बच्चों के पास लेटेस्ट आईफोन है, कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी में आते हैं. So, बट ये फायर फिर कहाँ से आएगी? करेक्ट, नहीं आएगी, नहीं आएगी. जब आपके पास ऑलरेडी पेरेंट्स से सब मिला हुआ है ना, ये मैंने देखा है. People who belong to rich families, you will see the kids are very laid back. जितना मैंने देखा है, शायद सब नहीं होंगे, Correct. पर वो एकदम ऐसे होते हैं, they are taken care of. Parents are giving them everything. Correct. बार 500 रुपए की कॉफी पी रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं. बिल्कुल, हमारे लिए ऐसा था कि 5 रुपए की बस की टिकट नहीं है हमारे पास. True. तो हमें वैल्यू पता है पैसे की, कि एक चीज भी हम लगा रहे हैं तो हम उसको अच्छे से यूज करें. आज भी मैं कितनी भी मेरी इनकम रही है, मैंने सब कुछ स्टूडियो में ही लगाई है. Wow. मेरे पास कुछ भी आता है ना, ये स्टूडियो में लगा दो. आई डोंट यूज इट पर्सनली बिकॉज फॉर मी आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू द स्टूडियो, कि मेरे बच्चे और यहाँ जो सब है टीचर्स, इनके काम आए वो सब. मैं अपने लिए क्या करूँ. राइट. आज आपके डैड मॉम आपको क्या बोलते हैं? दे फील वेरी प्राउड, दे फील वेरी हैप्पी कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो पूरे टाइम. मेरे बच्चे लगे रहते हैं, मम्मी तो बहुत. एंड पापा हमेशा आगे के लिए आग लगाते रहते हैं. आगे सोचो, आगे बढ़ो, और आगे सोचो. एंड मतलब मम्मी भी बहुत ऐसे करती हैं, और तैयारी करो. जैसे अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं हुई, कि मम्मी मैं इतने टाइम से ये ट्राई कर रही हूँ एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, यू नो, एवरी टाइम यू आर ट्राइंग फॉर मोर एंड मोर इन लाइफ. राइट. तो नहीं, और कर, मेहनत कर, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ो बच्चे. कल ही मेरी बात हो रही थी मम्मी से कि मम्मी मेरी मीटिंग बहुत गंदी हुई है, वो क्यों, और तैयारी करनी थी. मैंने कहा मम्मी ठीक है. सो पेरेंट्स आर ऑलवेज यू नो लाइक कुशनिंग यू एंड प्रिपेयरिंग यू फॉर मोर. ऐसा नहीं कि नहीं तुम लोग परफेक्ट हो, ऐसा कभी नहीं बोलते. ऐसा कभी नहीं परफेक्ट वैसा वाला नहीं, और करो. वो देखो ये इतना कर रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा आग भी लगाते हैं पापा. उनको देखो वहां चले गए, कहा पापा हम कर तो रहे हैं. राइट. आप सिस्टर्स का क्या इक्वेशन है? सिस्टर्स तो एकदम बेस्ट फ्रेंड्स. ऑलवेज. राइट. ऑलवेज मतलब हमारी फोन कॉल्स 1-1.5 घंटे से नीचे की नहीं होती हैं. मैं कितनी बार स्क्रीनशॉट लेती हूँ कि इस बार तो हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. इतनी बातें. और अभी तो दोनों बहनों की शादी हो गई है, मुक्ति होनी, तो वो लोग अपने अपने मतलब फैमिलीज में बिजी रहते हैं. तो जब कॉल होती है तब इतनी लंबी होती है पूरी, मतलब फैमिली के डिस्कशंस, फिर हम जो शोज भी करते हैं साथ में उसके डिस्कशन, इतनी सारी बातें हमारी अनलिमिटेड होती है हमेशा. कितने कभी आप लोगों को सबको साथ में मिलने मिलता है कि सब आ गए, पेरेंट्स भी आ गए, आप चारों आ गए? काफी होता है. मतलब मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी सी मतलब काफी साल से फ्रेजाइल चल रही है, तो हम लोग रोज ही उनको हॉस्पिटल में, दीदी नाश्ता भेज देंगी, मैं खाना लेके आऊंगी, मुक्ति डिनर लेके आएगी, ऐसे करके हम लोग रोज ही हॉस्पिटल में तो मिलते ही हैं. पर वी मेक श्योर दैट once a week or in 10 days we all go. That's amazing. And spend time together. That's amazing. नमस्ते, मैं हूं शक्ति मोहन और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव अ लॉट ऑफ लव.